everyone, my name is Dr. Neeta Chaudhary and today we'll be studying cache memory mapping techniques. Let us take a brief review of what is cache memory. Cache memory is a small, high-speed memory located between the CPU and the main memory, as can be seen in the diagram. Initially, when there was no cache memory, CPU used to read all the instructions and the data directly from the primary memory or the main memory for processing. But since the primary memory is very slow as compared to CPU, the overall time for the execution used to increase. So in order to bridge the speed gap between the CPU and the main memory, the concept of cache memory was introduced and a small high-speed RAM was placed between the CPU and the primary memory and named the cache memory. Now whenever CPU has to read instructions or the data from the memory, it will first send the request to the cache memory. If that request is satisfied by the cache memory or it is available, that data is available in the cache memory, we call that as a hit. And if it is not found in the cache memory, then we call that as a miss. And in case of a miss, the request from the CPU will directly go to the main memory or the primary memory and the data will be read. At the same time, when the data is moved from the main memory to the CPU, it is also moved into the cache memory, so that next time when the CPU wants to read the same data again, it should be available in the cache itself and miss should not occur, because we are using the cache memory to increase the speed of the overall memory system. So most of the requests of the CPU should be fulfilled by the cache memory itself. That is why a mapping between the main memory and the cache memory is required to identify how the data movement should take place between the main memory and the cache memory, and where the data should be stored in the cache memory, and how we can read the data from the cache memory, so that overall speed of execution is increased. Now, since cache memory is smaller in size and main memory is bigger in size, all data of the cache main memory cannot be copied into the cache memory. Only some of the data from the main memory is moved into the cache. So the data movement between the cache memory and main memory is known as mapping techniques. And we have different mapping techniques to identify how the data can be moved from the main memory to the cache memory, where it should be placed, how it should be accessed by the CPU. And since the cache memory is smaller in size, so when the cache memory is full, what data should be replaced? So before we start with the mapping techniques, we will see just some nomenclature that is used. First, we use a concept of blocks. The data movement between the cache memory and the main memory takes place in terms of blocks to take the advantage of spatial locality, because the programs that are stored in main memory are stored in consecutive memory locations, the instructions of that program. So if this miss occurs and some data is not found in the cache memory and the request has been sent to the main memory, it is quite possible the next request from the CPU will be some nearby locations only. Hence, the data movement between the cache memory and the main memory is in terms of blocks to take the advantage of spatial locality. Then what is a block? It's a group of words. The size of the block will be same for the main memory and the cache memory. Now, what is a word? Word is a unit of the data which is addressed by the processor. The word may be of minimum 8 bits, or it may go up to 16, 32, 64 bits. The block is known as the block in main memory, or it is known as block frame in cache. Some books also use the term line to refer to a block. Both are the same things. Just to have a different name, the block frame is used for the cache and the block is used for the main memory. Now, there are three design issues that are used that need to be solved in the design of the cache memory. First is block placement. Second is block identification. Third is block replacement. Block placement means whenever a block, in case of a miss, when the block is moved from the main memory to cache memory, where that block should be placed in the cache. So that is solved by the mapping technique. Second issue is block identification. Now, whenever CPU is reading a word from the cache, how to read, how to identify a word from the cache? But this question arises because main memory is bigger in size. All the
address that are generated by the CPU are for the main memory, and they are bigger in size. Since cache memory is smaller in size, it requires a smaller address. The cache CPU is generating a bigger address. So how we can use that bigger address to find a block or a word in the cache memory? So that is the second issue that we need to solve. Third is block replacement. Since cache memory is smaller in size, so complete data of the main memory cannot reside in the cache. So we need to think of a replacement strategy. Which block should be replaced from the cache memory when the cache memory is full and the new block has to be moved to the cache memory. So we'll solve all these three questions in the mapping techniques. There are three cache mapping techniques: direct mapping, fully associative mapping, set associative mapping. In this session, we will see direct mapping. First, look at the terminology that we will be using for the direct mapping technique. We use a term BI bar for the block frames in the cache. Total, there are M blocks N block frames in the cache. Similarly, main memory is also divided into blocks and they are denoted as Bj, where J is 0 to N. So we have total N blocks in the main memory, M blocks in the cache, where N is very much greater than M, and both N and M are in the power of 2. So we need R bits to address one block and we need S bits to address one block of main memory. Now block size, let us say it is of B words because block is made up of words. Then we need W bits to read a one word from the one block. The total main memory size is denoted as N into B. N is the total number of blocks, B is the block size, then N into B is the total memory size. Similarly, total cache memory size is M into B. Now CPU address is dependent on the main memory. Hence, the total main memory size was N into B and we require S plus W bits to address or to read one word from the main memory. Hence, the CPU address will also of S plus W bits. Now, moving on to the direct mapping technique. So it is one of the very simplest organization to implement. Now in this, what happens? Every block of main memory is mapped to a fixed location in cache memory using the modulo m function. What does it mean? इसका मतलब ये है मेन मेमोरी का एक ब्लॉक कैश मेमोरी में फिक्स लोकेशन पे कॉपी होता है और वी कैन से दैट मेन मेमोरी का हर ब्लॉक की कैश मेमोरी में लोकेशन फिक्स होती है कि वो कहां पर स्टोर होगा यूजिंग दिस मॉड्यूलो फंक्शन I इज इक्वल टू जे मॉड एम. जे मेन मेमोरी का ब्लॉक है, I कैश मेमोरी का ब्लॉक है और M टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है जो कि कैश मेमोरी में है. So it is I is equal to J mod M. Similarly, jth block of in memory will be mapped to BI bar block of the block frame of the cache memory. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि N by M मेमोरी ब्लॉक्स, टोटल मेमोरी में मेन मेमोरी में N ब्लॉक्स है, कैश मेमोरी में M ब्लॉक्स है. N को जब हम M से डिवाइड करते हैं वो हमें पता चलता है मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक्स एक ही कैश मेमोरी के ब्लॉक के साथ मैप होंगे. ये हम अभी आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. हम मान के चलते हैं कि मेन मेमोरी का साइज है 64 वर्ड्स और ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड्स. तो टोटल मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे? 64 by 4 दैट इज 16 ब्लॉक. तो हम ब्लॉक की नंबरिंग कैसे करेंगे? B0 से लेके B15 तक. सिमिलरली कैश मेमोरी का साइज है 16 वर्ड्स, मतलब कैश मेमोरी में 16 ही वर्ड्स आ सकते हैं. ब्लॉक का साइज 4, सिंस ब्लॉक साइज इज सेम इन मेन मेमोरी एंड द कैश मेमोरी. सो कैश मेमोरी में टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे? 16 by 4 दैट इज 4. This is example that we will be taking to understand the concept of direct mapping. So main memory में total 16 blocks है, cache memory में total 4 blocks है और CPU का जो address होगा वो हमारा depend करता है main memory के blocks plus block का size. तो हमारे पास total 16 blocks है जिसके लिए हमें 4 बिट चाहिए और ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड्स. तो W हमारी 2 बिट होती है तो टोटल 4 plus 2 that is 6 bits. 4 plus 2 this comes out to be 16 bits. 6 bits.
So CPU address is of 6 bits. Now, how cache mapping, direct mapping is done? As we can see in this diagram, main memory we have total 16 blocks, जो कि हमने B0 से B15 तक नंबर किए हैं. कैश में हमारे पास टोटल 4 ही ब्लॉक्स हैं जिनको हमने B0 बार, B1 बार, B2 बार एंड B3 बार, 4 को ऐसे नंबरिंग करी है. नाउ यूजिंग द मॉडुलो फंक्शन j is equal I is equal to j mod 4, ये मैपिंग होती है. कैसे मैपिंग हो रही है? सपोज j हमारा है टोटल 0, j की वैल्यू है 0 से 15 और i की वैल्यू है 0 to 3. टोटल m हमारा है 4, क्योंकि कैश मेमोरी में हमारे पास m is equal to 4 blocks, n is equal to 16 blocks. Now how the mapping is done? हम फॉर्मूला लगाएंगे j mod 4. तो j की वैल्यू 0, 0 mod 4 होती है 0. तो हमने देखा 0 वाला ब्लॉक b0 बार के साथ मैप होगा. 1 mod 4 होता है 1, तो 1 वाला b1 बार के साथ मैप होगा. 2 वाला b2 बार के साथ मैप होगा. 3 वाला b3 बार के साथ मैप होगा. नाउ b4 जो फोर्थ वाला ब्लॉक है, ये b4, इसका जब हम मॉडुलो करते हैं तो 4 mod 4 आता है हमारा 0. इसका मतलब b4 वाला भी हमारा मैप होगा b0 के साथ. सिमिलरली 8 वाला भी हमारा मैप होगा b0 के साथ, b0 बार के साथ. और 12 वाला जो ब्लॉक है ये भी मैप होगा b0 बार के साथ. तो मेन मेमोरी के 4 ब्लॉक एक ब्लॉक फ्रेम के साथ कैश में मैप होंगे. सिमिलरली b1 बार, तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वी कम आउट दैट b0 बार में हमारे पास कौन कौन से मैप हुए? b0, b4, b8 एंड b12. सिमिलरली b1 बार में हमारे पास कौन कौन से मैप होंगे कैश में मेन मेमोरी के कौन कौन से ब्लॉक? b1, b5, b9 and b13. Similarly, b2 बार में कौन कौन से मैप होंगे? b2, b6, b10, b14 एंड b3 बार में हमारे कौन कौन से ब्लॉक फ्रेम के साथ कौन कौन से मेन मेमोरी के ब्लॉक मैप होंगे? b3, b7, b11 एंड b15. सो दिस इज हाउ कि मेन मेमोरी के 4 ब्लॉक एक ही के साथ मैप होंगे n by m, जो हमने पीछे अभी फॉर्मूला पढ़ा था, n by m. So is equal to 16 divided by 4, which comes out to be 4. मतलब मेन मेमोरी के 4 ब्लॉक कैश मेमोरी के एक ब्लॉक के साथ मैप होंगे. बट एट अ टाइम एक ही ब्लॉक वहां पे रह सकता है, बाकी चारों एक साथ नहीं रह सकते. इसी के लिए हमें ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ती है. तो हम आगे देखते हैं. अब हमने मैपिंग तो कर दी है. सपोज सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी ब्लॉक b0 की, b0 वाला कैश मेमोरी में नहीं है, मिस होगा, तो b0 वाला ब्लॉक पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा b0 बार में. सिमिलरली सपोज नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है b7 की और 7 वाला ब्लॉक भी मेन मेमोरी में नहीं है, तो ये मैप हो जाएगा b3 बार में कॉपी हो जाएगा फ्रॉम मेन मेमोरी जब हमारा मिस होगा. तो पूरा ब्लॉक, हमने तो b7 का एक वर्ड रीड किया होगा बट पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी होगा. सिमिलरली जब हमने b0 का कोई वर्ड रीड किया होगा कैश मेमोरी में और वो नहीं मिलता है, मिस हो जाता है, तो मेन मेमोरी से पूरा का पूरा b0 ब्लॉक कॉपी होगा b0 बार में. ठीक है. तो दिस इज हाउ मैपिंग इज डन इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग. मेन मेमोरी के एक ब्लॉक की कैश मेमोरी में लोकेशन फिक्स होती है, तो इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के ब्लॉक को मूव करना होता है. Now, so this is how block is placed. Placement is done between the main memory and the cache memory in case of direct mapping. The second question is how to read a word from the cache memory. So, जब CPU एड्रेस भेजता है कैश मेमोरी के पास, तो वो एड्रेस कैसे कैश मेमोरी उसको आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा वर्ड हमें रीड करना है. तो जो ये CPU का एड्रेस होता है दैट इज फॉर द मेन मेमोरी. तो ये जो हमारा एड्रेस है टोटल, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 बिट्स का है हमारा पूरा का पूरा एड्रेस. ये नाउ इस 6 बिट के अगर हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स थे मेन मेमोरी में? 64 वर्ड्स.
and 64 is, just go back, 64 is equal to 2 raised to the power of 6. Hence, we need 6 bits. Now, this address of 6 bit or whatever size is there for the address is divided into 3 parts: tag, block, word. 3 पार्ट में इस एड्रेस को डिवाइड किया जाता है, टैग में, ब्लॉक में और वर्ड में. सबसे पहले हम वर्ड के लिए देखते हैं कितनी बिट आइडेंटिफाई होती है. वर्ड डिपेंड करता है ब्लॉक के साइज पे. हमारा ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है. तो कितनी बिट चाहिए हमें? 2 बिट चाहिए हमें वर्ड के लिए. तो वर्ड को मिली, मतलब डब्ल्यू को मिली 2 बिट्स. सिमिलरली ब्लॉक हमें बताता है कि कितने ब्लॉक्स है कैश मेमोरी में. हमारे पास कैश मेमोरी में टोटल 4 ब्लॉक है, तो हमें एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए सिर्फ 2 ही बिट का एड्रेस चाहिए. तो आर की वैल्यू भी हो गई 2, और जो बाकी बची होती है 6 - 4, दैट इज टोटल वी नीड हियर इन दिस केस 2 बिट फॉर द टैग फील्ड. यही आप देख सकते हैं पीछे एग्जाम्पल में, यहाँ पे 2 बिट का हर ब्लॉक के साथ एक टैग लगा है. तो जब भी हमारा ब्लॉक मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कॉपी होता है, उसके साथ उसका 2 बिट का टैग भी स्टोर हो जाता है. तो हमने क्या किया, जो एड्रेस आया सीपीयू से वो 6 बिट का था. कैश मेमोरी क्योंकि हमारी स्मॉल साइज की है, उसमें टोटल 4 ब्लॉक है, 4 × 4, हर ब्लॉक में 4 वर्ड्स है, 16. तो कैश मेमोरी को जो एड्रेस चाहिए वो चाहिए 4 बिट का. बट एज पर दिस सिनेरियो, यहाँ पे कैश मेमोरी को एड्रेस मिला है 6 बिट का, जो कि 4 बिट से बड़ा है. तो डायरेक्टली हम उस एड्रेस को कैश को नहीं दे सकते हैं, सो दैट डेटा कैन बी रेड. दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस एड्रेस इन 3 पार्ट्स: टैग, ब्लॉक, वर्ड. ब्लॉक को कभी कभी हम लोग इंडेक्स भी बोल देते हैं. ओके, सो दिस इज टैग, index word, or tag, block word. Now how the identification is done, block identification. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये 2 बिट का ब्लॉक फील्ड होती है, इस 2 बिट के ब्लॉक फील्ड से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो 4 हमारे ब्लॉक थे कैश में, ब्लॉक फ्रेम, हर एक के साथ 2-2 बिट का टैग है. तो हम पता लगाएंगे जो 2 बिट आई है ब्लॉक में, वो 2 बिट कौन से वाले ब्लॉक फ्रेम की, B0 बार की, B1 बार की, B2 बार की या B3 बार की. तो वो आइडेंटिफाई करते हैं. इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से वाला ब्लॉक है जिसमें हमें डेटा ढूंढना है. नाउ अब हमें ये ब्लॉक नंबर मिल गया कि इस ब्लॉक पे मैप करेगा. नाउ क्योंकि हमें पता है कि कैश मेमोरी के सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक फील्ड लेते हैं 2 बिट की, उसे पता लगाते हैं कि कौन सा वाला ब्लॉक फ्रेम है जो कि कैश का, जिसमें से हमें वर्ड मिलेगा. फिर उन 2 बिट, जब हमें पता चल गया कौन सा ब्लॉक है, फिर हम उस ब्लॉक के टैग को, जो गिवन टैग है 2 बिट का, उसके साथ कंपेयर करते हैं. जैसे कि अगर हम ये देखें पीछे, सपोज हमारा ब्लॉक B2 बार का ब्लॉक नंबर सपोज हम लेते हैं. यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ले सकते हैं 00, 01, 10, 11, ऐसे करके कोई टैग. सपोज ब्लॉक में जो 2 बिट थी उनका कोड था 10, तो ये B2 बार के साथ मैप किया है. अब B2 बार में अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक है जो मैप हो सकते हैं: B2, B6, B10 एंड B14. अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन से वाला ब्लॉक यहाँ पे मैप्ड है. जो हमें चाहिए वो वाला मैप्ड है वो या नहीं है, वो हमें पता चलता है टैग की बिट से. इसलिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में जो टैग हमें दिया हुआ है, ये टैग और जो ब्लॉक हमें मिला ब्लॉक फील्ड से एड्रेस के, उन दोनों को कंपेयर करते हैं. अगर दोनों टैग मैच कर जाते हैं, इसका मतलब जो ब्लॉक हम ढूंढ रहे हैं वही ब्लॉक कैश में अवेलेबल है. जिस ब्लॉक में हमें वर्ड ढूंढना है वही कैश में अवेलेबल है. सो इट इज अ हिट. अगर हिट हो जाता है तो जो 2 बिट की वर्ड फील्ड है, हमें ब्लॉक पता चल गया कि हाँ ये ब्लॉक सही है, हिट हो गया है, जिस ब्लॉक में से वर्ड ढूंढना है वही ब्लॉक कैश मेमोरी में है, तो वर्ड फील्ड से 2 बिट से उन 4 डेटा में से एक डेटा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो डेटा हम किसको भेज देते हैं, सीपीयू. बट अगर या कंपेयर करने पर टैग, ब्लॉक का टैग
एड्रेस के टैग से मैच नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं मिस इन द कैश, और उस केस में ये पूरा का पूरा एड्रेस एज इट इज चला जाएगा मेन मेमोरी के पास, पूरा का पूरा एड्रेस मिस होने पे, और हम मेन मेमोरी से डायरेक्टली डेटा, क्योंकि मेन मेमोरी को 6 बिट का ही एड्रेस चाहिए, तो डायरेक्टली हम डेटा रीड कर लेंगे, इसको चाहिए था 4 बिट। So this is how direct mapping is done. We divide the address in 3 parts: tag, block, and word. Okay. Now we will see the advantages and disadvantages of direct mapping technique. The advantages of direct mapping technique are that it is simplest organization, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक मॉड फंक्शन लगा के हम पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, ज्यादा इसमें कोई हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ब्लॉक को मैप करने में फ्रॉम द मेन मेमोरी टू कैश। सेकेंड, सर्च टाइम इज नेग्लिजिबल, क्योंकि जब हमने देखा हम यहाँ पे ढूंढते हैं ब्लॉक को, तो हमें सिर्फ बस एक टैग को कंपेयर करना है, अगर टैग मैच करा तो इट इज अ हिट, अदरवाइज इट इज अ मिस। प्लीज सर्च टाइम इज ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल। Similar, and third, no block replacement algorithm is required. Why? Because ये फिक्स्ड मैपिंग है, यहाँ पे हर ब्लॉक की लोकेशन फिक्स्ड है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हमें जो रिक्वेस्ट आई सीपीयू से वो ब्लॉक नंबर B10 से रिक्वेस्ट थी, मतलब B10 में कोई वर्ड है जो हमें सीपीयू को रीड करना था, बट कैश मेमोरी में B2 वाला B2 बार में कॉपी था, क्योंकि वो भी इसी पे मैप हो रहा है। हमें डेटा रीड करना है B10 से, कैश मेमोरी में है B2, तो क्या होगा, मिस होगा, और फिर मिस होने के बाद रिक्वेस्ट जाएगी मेन मेमोरी के पास, और वहां से ब्लॉक B10 B2 बार में कॉपी होगा। तब B2 बार में तो ऑलरेडी B2 है, तो हमें B2 को ही रिप्लेस करना है, तो हमें अलग से कोई रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है कि किसको पहले हटाएं किसको बाद में हटाएं, हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन फिक्स है, तो हमें B2 को ही रिप्लेस करना पड़ेगा विद B10। That is why no replacement algorithm is required. Lower hardware cost, क्योंकि यहाँ पे search time is negligible, ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत है, सिर्फ एक कंपैरेटर लगाना है to compare the two tags, and fast access, so speed is very high here. But there are certain disadvantages of direct mapping. Disadvantages are mapping is not flexible because it is rigid mapping. हर ब्लॉक की लोकेशन मेन मेमोरी में फिक्स्ड है, इसको रिजिड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, सपोज हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्लॉक को रेफर करना है, सपोज 6 और 10, B6 और B10, 2 ही ब्लॉक हमें चाहिए। B6 के लिए रिक्वेस्ट आई, हमें नहीं मिला, हमने B6 को B2 बार में कॉपी करा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई जो वर्ड की सीपीयू से, वो आई B10 की, 10 कैश मेमोरी में नहीं है, फिर से मिस हुआ, तो हमने B6 को हटा के B10 को ऐड कर दिया। नो थर्ड रिक्वेस्ट जो आई वो सपोज B6 की है, तो हमने फिर से B10 को हटा के B6 से रिप्लेस करा। सपोज फोर्थ रिक्वेस्ट आती है B10 की, सो व्हेन देयर आर ऑल्टरनेटिंग रिक्वेस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक्स, और वो दोनों ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक सेम ही ब्लॉक फ्रेम में मैप करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हिट रेशियो बहुत ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज हर बार मिस होगा, कभी भी हिट नहीं होगा। एंड द मैपिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल। हो सकता है बाकी ब्लॉक्स खाली हो, वहां पे जगह खाली हो, वहां पे कोई और मैप ब्लॉक मैप नहीं हुआ हो, बट क्योंकि हमें B6 और B10 ही चाहिए, इसीलिए सिर्फ B2 रिजिड मैपिंग की वजह से बार बार मिस हो रहा है, इसलिए ये नॉट फ्लेक्सिबल है। हिट रेशियो इसमें कई बार ड्रास्टिकली ड्रॉप भी हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादा, हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोलिजन्स ना हो, तो कम से कम ब्लॉक मेन मेमोरी के मैप करने चाहिए कैश मेमोरी में, इसलिए हमें कैश मेमोरी का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये मैपिंग टेक्निक थोड़ा ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देती है। Now we will see some examples. This is all about direct mapping technique. Now we will see few examples of direct mapping technique. First example. So this is first example. We have considered a direct map cache of size 16 KB. Direct cache का size है 16 KB. Block का size है 256 bytes. That means it is a byte addressable. यहाँ पे word का size 8 bits है. Byte का मतलब 8 bits. Main memory का size है 128 KB. Now हमें बताना है find the number of bits in the tag and the tag directory size. तो हमें बताना है कि अपना जो एड्रेस होगा सीपीयू का, उसमें टैग को कितनी बिट्स मिलेंगी। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई, पहले हमें ये पता लगाना होगा हमारा एड्रेस कितने बिट का है, टोटल एड्रेस सीपीयू का। द एड्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें कैश मेमोरी का साइज 16 KB, ब्लॉक का साइज और ब्लॉक फ्रेम का साइज और लाइन का साइज 256 बाइट्स और 256 वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही बाइट है, हमने कहा था एक वर्ड कम से कम 1 बाइट का होना चाहिए, तो हमें 2 raised to the power 8
हमें 8 बिट चाहिए एक वर्ड ढूंढने के लिए एक ब्लॉक में, क्योंकि ब्लॉक में टोटल 256 वर्ड्स है। नाउ मेन मेमोरी का साइज हमारा 128 KB है, तो दैट इज 2 रेज टू द पावर 17 128 KB। तो हमें फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स चाहिए? 17 बिट्स। इसका मतलब हमारा जो सीपीयू का एड्रेस है वो 17 बिट का होगा। नाउ हम इस एड्रेस को एज पर द डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टैग, ब्लॉक, वर्ड। तो कितनी बिट किसको मिलेंगी ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंस ब्लॉक साइज इज 256 वर्ड्स, 8 बिट हमें चाहिए एक वर्ड ढूंढने के लिए, तो वर्ड को हमने दे दी 8 बिट्स। नाउ टोटल कितने कैश मेमोरी में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स फ्रेम्स इन कैश मेमोरी इज 16 इंटू, जो कि कैश मेमोरी का साइज 16 KB, तो 16 इंटू 16 इंटू 1024 किलो पर किलो डिवाइडेड बाय 256, क्योंकि एक ब्लॉक का साइज है 256। तो टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे कैश मेमोरी में? 64। और 64 के लिए हमें कितनी बिट चाहिए? 6 बिट हमने दे दी यहाँ पे ब्लॉक को, 8 बिट वर्ड को, और 17 में से बाकी जो बची 3 बिट मिलकर टैग। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। टैग के लिए हमें कितनी बिट चाहिए? 3 बिट। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, टैग डायरेक्टरी का साइज, कि हमें जो कैश में जो टोटल टैग लगेंगे वो टोटल कितने बिट ऑक्यूपाई करेंगी स्पेस कैश मेमोरी की। तो हमें पता है एक टैग 3 बिट का है, तो कितने ब्लॉक्स हैं टोटल? टोटल हमारे पास 2 रेज टू द पावर 6 ब्लॉक्स हैं कैश मेमोरी में, तो हर ब्लॉक के साथ 3 बिट का टैग लगेगा। तो टैग डायरेक्टरी का साइज कैसे हमें पता चलेगा? नंबर ऑफ टैग्स मल्टीप्लाई बाय टैग साइज। तो टोटल कितने टैग चाहिए हमें? 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ये डिवाइड नहीं है, ये जस्ट और भी लिख सकते हैं इसको हम, नंबर ऑफ लाइंस और ब्लॉक फ्रेम्स, क्योंकि कुछ बुक्स लाइन यूज करती है इंस्टेड ऑफ ब्लॉक फ्रेम्स, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बिट्स। 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल टैग्स 192। एंड 192 को अगर हम देखें तो ये होता है हमारा so the tags we need total 192 bits for the tag directory. 192 is equivalent to 246 bytes, hence the size of the tag directory is 24 bytes. So this is example 1. Now we'll move to the second example. Example 2. It is the GATE question 2005. So let us read the question. Consider a direct mapped cache of size 32 KB. यहाँ पे कैश मेमोरी का साइज है 32 KB, ब्लॉक का साइज है 32 बाइट्स। द सीपीयू जनरेट्स अ 32 बिट एड्रेस। यहाँ पे सीपीयू का एड्रेस दिया हुआ है, या तो हमें मेन मेमोरी का साइज दिया हो उससे हम एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, या हमें सीपीयू का एड्रेस दिया है तो उससे मेन मेमोरी का साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The question is number of bits needed for cache indexing and the number of tag bits. ये हमें बताना है। तो हमें क्या क्या गिवन है? कैश मेमोरी का साइज 32 KB, ब्लॉक का साइज और फ्रेम का साइज और लाइन का साइज। हम राइटिंग बिकॉज डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। इज इक्वल टू 32 बाइट्स, मतलब एक ब्लॉक में 32 वर्ड्स हैं। हर वर्ड ढूंढने के लिए हमें 5 बिट का एड्रेस चाहिए, 2 रेज टू द पावर 5। और फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट है? 32 बिट। नाउ हमें डायरेक्ट मैपिंग में इस एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, टैग, ब्लॉक, वर्ड। मेन मेमोरी का साइज हमारा एड्रेस पे डिपेंडेंट है, 32 बिट का एड्रेस है, तो इसका मतलब मेन मेमोरी का साइज हो गया 2 रेज टू द पावर 32 बाइट्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश। कैश में टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे? क्योंकि जब हम एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टैग, ब्लॉक, वर्ड, तो ब्लॉक हमें पता करना होता है विद द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कैश का साइज है 32 KB, 30 into 1024 divided by 32, hence it comes out to be 1024 blocks, and 1024 का मतलब 10 बिट्स। तो हमें एक ब्लॉक ढूंढने के लिए कैश में 10 बिट्स की जरूरत है। So now we will divide our address in 3 parts and see the bits needed for the cache indexing. So here 32 bit address is divided in 3 parts. 5 बिट हमें वर्ड को दे रहे हैं, 10 bits for the block and rest 17 bits for the tag. Now cache indexing, index का मतलब होता है ब्लॉक,
So number of bits in the block field is 10. So that is the answer. Now coming on to the third example, it is again of GATE 2011. So we'll see how it works. An 8 KB direct map write back cache is organized. अभी हम write back को आपको मतलब नहीं पता है तो इसके बाद इसको So an 8 KB direct map write back cache is organized as multiple blocks, each of size 32 byte. यहाँ पे कैश का साइज है 8 KB, ब्लॉक का साइज है 32 byte. Processor generates a 32 bit address. Again, here the address is of 32 bit. The cache controller maintains the tag information for each block comprising of the following. मतलब कैश में जो टैग स्टोर होगा वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसमें टैग इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक वैलिड बिट होगी, एक मॉडिफाइड बिट. ये इंफॉर्मेशन भी टैग के साथ कैश कंट्रोलर में स्टोर होगी. Now, as many bits as the minimum needed to identify the memory block map in the cache, what is the total size of the memory needed at the cache controller to store the tags for the cache? तो हमें यहाँ पे बताना है टोटल हमें कैश कंट्रोलर को कितनी मेमोरी चाहिए टैग्स को स्टोर करने के लिए. ये हमें बिट्स में दिया है, ये 4 ऑप्शन है, तो यू हैव टू सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो कैश वी नो दैट 8 किलोबाइट, ब्लॉक का साइज है 32 बाइट. तो कैश में टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे? कैश का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज, 8 into 1024 divided by 32 is 256. So total 32 bit address we have, जिसमें से हमें ब्लॉक को देंगे 5 बिट. ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक का मतलब वर्ड्स है बेसिकली. ओके, तो 5 बिट हमें वर्ड को देने हैं. इंडेक्स और ब्लॉक इज वन थिंग. So we give 8 bits for the number of कैश ब्लॉक्स, क्योंकि 256 है तो 8 बिट में हम एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी बची 19 बिट्स इसको मिल जाएंगी टैग. सो आई होप दिस इज क्लियर. 32 बिट्स कैसे हमने ब्रेक किया? 5 बिट हमने वर्ड को दिया, 8 बिट हमने ब्लॉक को दिया और इंडेक्स, और 19 बिट्स रेस्ट ऑफ द 19 बिट्स आर गिवन टू द टैग. नाउ हमें बताना है टोटल कैश में टैग स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए. तो टोटल बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर मेटा डेटा ऑफ वन ब्लॉक, एक ब्लॉक का डेटा स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट चाहिए? 19 बिट तो टैग के लिए, एक वैलिड बिट, एक मॉडिफाइड बिट, टोटल 21 बिट चाहिए. और हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स है कैश में? 256. इसी को जब हम 256 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चलेगा टोटल कितनी बिट्स चाहिए हमें कैश में टैग और मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए. दैट इज 5376. So here the correct answer is B, 5376 bits. So they are the 3 examples we have taken for the direct mapping technique, and this is all for direct mapping techniques. And the next lecture we will be studying fully associative mapping technique. Thank you so much.